ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਕੋਈ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੈਕਚਰ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 8ਵਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 8ਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 9ਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੈ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ज़रा बेहतर समझ आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी बुनियाद क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे आज हम नज़र डालेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that studies the structure, properties and reaction of organic compounds which contain carbons in covalent bonding. Organic chemistry basically organic compounds की chemistry है, और organic compounds में हम reaction भी डिस्कस करते हैं, organic compounds की physical properties भी डिस्कस करते हैं, physical properties के अलावा इसके structure भी डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी ईच एंड एवरीथिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से चीज़ें रिलेटेड हैं वो तमाम हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो अर्थ लाइफ की बेसिस हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आप जितने प्लांट्स देख लें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एक प्लांट के अंदर। इसके अलावा एनिमल देख लें, एनिमल्स के अंदर जो है वो मेजर पोर्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। तो इसलिए अर्थ पे जो जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसकी बुनियाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोस्ट
इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे लिए, क्योंकि हम खाते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम पहनते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम ओढ़ते ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और हम सोचते भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। ठीक है जी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बुनियादी एलिमेंट है वो कार्बन है, और कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है। अब इसकी मुकम्मल डेफिनेशन पे जाने से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं। Before the 19th century, chemists generally believed that compounds obtained from living organism was endowed with vital force that distinguished them from inorganic compounds. अब इसको थोड़ा सा सिंपल आसान अल्फाज में ऐसे समझाया जाए कि शुरू में ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स में और एनिमल्स में जो चीज़ और जो फोर्स तैयार करती है उस फोर्स का नाम वाइटल फोर्स है। कि वाइटल फोर्स यानी जिसको हम कुदरत कह देते हैं, कुदरती ताकत, तो वही ऐसी फोर्स है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तैयार करती है। और इसी कंसेप्ट को लेकर इस एक थ्योरी बन गई जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया गया। और काफ़ी अरसे तक इस वाइटल फोर्स थ्योरी पे बिलीव किया जाता रहा, और जब इस चीज़ पे बिलीव कर लिया जाए तो उस पर फिर इंसान सोचना भी बंद कर देता है। थ्योरी बनी हुई थी इसलिए लोगों ने इस पर सोचना भी बंद कर दिया, लोगों ने इस पर कोशिश भी बंद कर दी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब खुद तैयार कर ही नहीं सकते तो हम कोशिश क्यों करें। लेकिन 1816 के अंदर जो है माइकल कैरोल जो था उसने सोप की स्टडी शुरू की। सोप इससे पहले बन चुका था। सोप कैसे बनता है? फैट से और अल्कली से। उसने फैट और अल्कली से जो सोप बनता है, सोप बेसिकली द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसने क्या किया कि सोप को दोबारा ब्रेक करके अल्कलीज को अलहदा किया और उसमें से जो एसिड है उसको अलहदा किया, यानी उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चेंजेस ले आई। लेकिन इससे पहले जो वाटर फ्यूल्स थ्योरी का कंसेप्ट था कि ना ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए जा सकते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम तब्दीली कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1816 के अंदर उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक तब्दीली जो है वो करवा दी थी। तो इस तरह एक कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम बना नहीं सकते उसमें चेंजेस तो ला सकते हैं ना। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बना भी लिए गए। 1828 के अंदर फ्रेडरिक वोलर फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला तैयार किया था, दैट इज़ द यूरिया। केमिकल नेम यूरिया का कार्बामाइड है और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का, एनिमल यूरिन का। इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? वो बेसिकली अमोनियम साइनेट था। अमोनियम साइनेट उसने तैयार किया था पोटाशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट के रिएक्शन से। दोनों का जब रिएक्शन करवाया तो अमोनियम साइनेट बना। फिर अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया जिसकी वजह से यूरिया बन गया। इसको वोलर सिंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका हम रिएक्शन देख लें कि अमोनियम साइनेट है, इसको हीट किया जाए तो यूरिया बन जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये फार्मूला जो कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है जी। आप इसको चाहें तो कंडेंस फॉर्म में लिख लें, तो ओपन करके लिख लें तब भी ठीक है। ठीक है जी। अमोनियम साइनेट, ये दो रिएक्शन है। अमोनियम साइनेट किसी बुक में इस तरह लिखा होता है NH4NCO नेगेटिव, किसी में NH4OCN भी लिखा होता है, जिस तरह मर्जी लिख लें। ये एक पहली तब्दीली पैदा हो गई जिसने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। जो कंसेप्ट बना हुआ था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार ही नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो फ्रेडरिक वोलर ने एक समझ लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तूफान बर्पा कर दिया
कि जैसे ही एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ तो लोगों की मेंटालिटी चेंज होना शुरू हो गई कि हम भी तैयार कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे बनना शुरू हुए कि आज 1820 के बाद 2020 तक मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिए गए हैं, मिलियंस में। अच्छा जी, 1856 में भी कहते हैं बाद में एक विलियम हेनरी परकिंस था, उसने क्विनीन्स तैयार करने की कोशिश कर रहा था। क्विनीन मलेरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली पहले मेडिसिन थे जो प्लांट से हासिल की जाती थी। तो परकन जो था उसको सिंथेसाइज करने की कोशिश करता था कि मलेरिया की बीमारी पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है, इसको पौधों से तो सारी की सारी मेडिसिन ही हासिल नहीं की जा सकती, प्लांट्स तो हैं जो इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, हम क्यों ना इसको लेबॉर्ट्री में तैयार करके देखें। लेकिन वो इस कोशिश में क्विनीन तो तैयार ना कर सका, लेकिन उसने डाई तैयार कर ली, परकन मॉव से कहते हैं। परकन मॉव एक पर्पल कलर होता है जो आज भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरह समझ लें एक डाइज़ की तरफ भी रुझान चल पड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर इसके बाद फर्स्ट मेडिसिन तैयार की उन्होंने एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, जिसका एस्प्रीन कहा जाता है। बायर्स जर्मनी में बायर्स कंपनी इसको बनाना स्टार्ट किया, तो इसका पहले ये मेडिसिन बन गई। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी तूफान बर्पा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनाने का। तो इसलिए आप अक्सर मेडिकल स्टोर से जो मेडिसिन लेते हैं एंटीबायोटिक्स या किसी बीमारी के खिलाफ, मोस्टली वो ऑर्गेनिक ही होते हैं। ये परकन पर्पल कलर है, इसको परकन्स मॉव भी कहा जाता है, जो उसने शुरू में तैयार किया था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन की तरफ। पहली बात हिस्ट्री, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं? शुरू में जो डेफिनेशन बनाई गई थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन हो, लेकिन इसमें को डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। फिर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को एज एसेंशियल एलिमेंट तस्वर किया जाने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन एज एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन क्या कार्बन और हाइड्रोजन अगर एसेंशियल हैं तो क्या फिर ऐसे तमाम कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन के मुताबिक तो कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो एलिमेंट तो हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली, तो फिर भी हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर नहीं करेंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, तो जितने भी कार्बोनेट्स हैं उसमें तो कार्बन होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? कि उसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जो प्रॉपर्टीज़ है हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये तो फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इस तरह सायानाइड्स, कार्बाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, इनमें कार्बन तो हैं लेकिन इनमें कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अच्छा जी, एक बात और हम बताते चलें यहाँ पे, शुरू में जो ऑर्गेनिक का लफ्ज़ था, जैसे कि हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक जो है वो लिविंग थिंग्स यानी एनिमल से, प्लांट से, और एनिमल प्लांट से कौन बनाता है? वाइटल फोर्स बनाती है। इसको हम वाइटल भी कह सकते हैं, हम नेचुरल फोर्स भी कह सकते हैं। तो इसलिए नेचुरल कंपाउंड्स को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कहा जाता था। इस वक्त आप आजकल बड़ी बातें सुनते हैं मीडिया पे, ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड से मुराद क्या होती है? कि ऐसी फूड जो नेचुरली तौर पे क्रिएट होती हो, चाहे वो सब्जियां हों नेचुरली तौर पे, चाहे वो मीट हो नेचुरली तौर पे बनाया जाने वाला, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नेचुरल कंपाउंड समझे जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो डेफिनेशन के लिहाज से हमने दो तरह बता दी हैं आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। अब डेफिनेशन चाहे ये वाली याद कर लें, चाहे आप ये वाली याद कर लें। अच्छा जी,